خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئے ہم سب خداوند اپنے خدا کے حضور میں اپنے سروں کو جھکائیں جو نہایت مہربان اور شفیق ہے۔ ہم سب انسان ہوتے ہوئے گنہگار ہیں، جانے انجانے میں اکثر گناہ میں گر جاتے ہیں۔ اس سے بیشتر کہ ہم خداوند کی حضوری میں جھکیں، ہم اپنے گناہوں سے تائب ہوں اور اس سے معافی طلب کریں گے اور سب مل کر پڑھیں گے، توبہ کا عمل۔ اے میرے خدا، میں اپنے سارے دل سے پشیمان ہوں کہ میں نے تجھے نیکی اور بزرگی کے خلاف گناہ کیا۔ میں اپنے ساتھ گناہوں سے نفرت کرتا ہوں جو تو ناخوش کرتے ہیں۔ اے میرے خدا، مجھے ساتھ پیار کے لائق ہے اور مضبوطی سے ارادہ کرتا ہوں تیرے پاک ملک سے رحمت نراز نہ کروں گا بلکہ گناہوں سے کنارہ کروں گا۔ قدوس اور مہربان باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں زندگی اور زندگی کی تمام تر نعمتوں کے لیے، خاص کر اس وقت اور گھڑی کے لیے جو تو نے اب ہماری زندگی میں بخشا ہے۔ اے مہربان پیارے خداوند، ہم گنہگار ہیں، کمزور ہیں، اس قابل نہیں کہ تیرے حضور میں آ سکیں، لیکن یہ تیرا پیار، تیری محبت جو ہمیں بار بار تیرے حضور، تیرے قدموں میں کھینچ لاتی ہے۔ اے مہربان باپ، ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، تیرے روبرو اپنے آپ کو اندھیرائے میرے باپ، جتنی جان تیرے حضور میں جھکی ہوئی ہیں، ایک ایک کو چھوڑا تیرے خداوند اور ایک ایک کو برکت دے، تاکہ مہربان تیرے خداوند ہم اسی طرح تیرے ساتھ پیوست رہیں اور تیرے قدموں میں آتے رہیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ آج کی ساری عبادت تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں میرے خداوند، ہم سب کو چھو، گانے والوں کو، بجانے والوں کو، سب کے ساتھ ہو، سب کو بلیس کرے میرے خداوند، تاکہ ہم جو کچھ کریں وہ تیری خوشنودی کے لیے ہو، تیری عزت اور جلال کے لیے ہو، اور جو کریں وہ دل اور روح سے کریں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ ہم خداوند کی مدح سرائی کرتے ہوئے زبور 32 گائیں گے۔ او در جس نے بخشے گئے سب گناہ۔
दोस्तों, जब हम खुदावंद अपने खुदा के हजूर में दिल की गहराई से, रूह और सच्चाई से आते हैं, जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो फिर वो हमारे गुनाहों को बख्श देता है। हमारी जितनी गलतियाँ और खताएँ होती हैं उन्हें मुआफ़ कर देता है। लेकिन ये ज़रूरत है कि हम जब उसके सामने झुकें तो बड़े ईमान के साथ और बड़ी अकीदत के साथ उसके हजूर में आए, तो वो ज़रूर हमारी अर्ज़ और मिन्नतों को सुनता और पूरा करता है। खुदावंद की परस्तश में आगे बढ़ेंगे। ज़बूर 128। हमें दावत देता है कि हम खुदावंद अपने खुदा की मदसराई करें, उसकी तारीफ में गाएं और बचाएं और दिल से उसे पुकारें ताकि
اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں، تاکہ اس کے مقبول نظر ٹھہر سکیں، کیونکہ خدا نے انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ دنیا پہ آئے، کھائے پیے اور مر جائے، بلکہ اس نے انسان کو اپنی شکل و صورت پر بنایا اور اس میں اپنی روح کو پھونکا اور انسان کو اپنی مدح سرائی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اس نے پیدا کیا، جبکہ ہم اس مقصد کو بھول چکے ہیں جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ میں درخواست کروں گا مسز ایرک سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ مائک پرستش میں باقی رہیں گے اور گیت گائیں گے، تیری پرستش صبح و شام ہے۔
प्रस्तुत सुबह और शाम करें, अपनी जिंदगी तेरे नाम करें। मेरे अजीजों, जब हम रूह और सच्चाई से और दिल की गहराई से उसकी प्रस्तुत करते हैं तो अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान में मौजूद होता है। हमारा यकीन है कि हमारा खुदावंद हमारे दरमियान में मौजूद हुआ है, उसका तब यहाँ पे लग चुका है, क्योंकि हम सब बड़े ईमान के साथ उसे पुकार रहे हैं, हम सब उसकी मददसराई कर रहे हैं, और जब हम दिल से उसको पुकारते हैं तो वो हमारी जरूर सुनता है। हम प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे। हम जरूर गीत गाएंगे, यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे। गीत नंबर 281।
दे गا. जो बोझ से तू करता था वो आज भी तू करेगा. पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे. मेरे अजीजों, यकीन रखें, ईमान के साथ उसके साथ जुड़े रहें और ईमान से उसे पुकारें तो वो जो शिफा का मंबा है, जिससे शिफा जारी होती है, वो आज भी बाएं दाएं खड़ा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरी तरफ लौट आ. वो आज भी हमें शिफा देना चाहता है, वो रूहानी तौर पर भी शिफा देना चाहता है और हमें जिस्मानी तौर पर भी शिफा देना चाहता है. आए हम अपने ईमान में मजबूत रहें और उसे दिल से पुकारें ताकि आज कोई भी यहाँ से खाली हाथ न लौटे बल्कि उसकी शिफा लेके जाए. अभी मैं सोबिया को दावत दूंगा कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करें. आए हम सब अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और गीत नंबर 13 गाएंगे छोटी बुक में, बेजरू का मसा, बेजरू का मसा. आंखों को बुलंद करें.
जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का तशरीफ रखें। अब वक्त है कलाम का। मैं दावत दूंगा मोस्ट सीनियर मास्टर यूसुफ कि वो आएँ और हमारे साथ कलाम पेश करें। आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 2 बाब उसकी पहली 18 आयत। जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह में जमा थे और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा, और आग के शोले की सी ज़बानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और दूसरी ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। और आसमान के तले की हर एक कौम से खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में थे। जब ये आवाज़ सुनाई दी तो हजूम लग गया और लोग मुतअज्जब हुए, क्योंकि हर एक को ये सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। और सब हैरान होकर और तवज्जो करके आपस में कहने लगे, देखो ये जो बोलते हैं क्या सब जलीली नहीं? बस क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। पारथी और मादी और इरामी और माबीन अल नहरी और यहूदिया और कपादोकिया और पैंतस और आसिया और फेरोचिया और रमकोलिया और मिस्र और लोबिया में करवान के आसपास के इलाके के बाशिंदे और मुसाफिरीन रोमा, क्या यहूदी, क्या नोमरी, क्या करेदी और अरबी, हम अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के अजीब कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और तवज्जो करके एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। और उन्हें ठट्ठे से कहा कि ये नई नए के नशे में है। तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद की और उनसे कहा, ऐ यहूदी मर्दों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, इसलिए कि अभी तो दिन की तीसरी ही घड़ी है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह से हर बशर पर अंधेरूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे नौजवान रोयतें देखेंगे और तुम्हारे बूढ़ों को ख्वाब आएंगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। शुक्र। आए हम अपनी मास्टर जी से खुदा के कलाम से बातें सुने। मेरी तरफ से आप सबको, बड़ों को, बच्चों को, बेटियों को, माओ को सलाम करता हूँ। सलाम की आवाज़ नहीं आई जैसे मेरे से गुस्से होती है। सलाम जब सब। तो आज की पाक सलामत में ईद पेंतीकोस्त के बारे में सुना है। ईद खमसीन भी इसको कहा गया है। क्या कहा गया है? बोलने पर
आज आप पेंटिकोस्ट के बारे में ईद खमसीन किसको कहते हैं, किसी को पता है? ये यहूदियों में ईद मनाई जाती है। ईद खमसीन, ईद खमसीन के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले ये यहूदियों में ना फसली ईद थी, जैसे हमारे आजकल फसल की ईद है, फसल काटने के आजकल कटाई होती है गंदम की। उस वक्त भी इसराइल में ये था, वो जब गंदम की कटाई होती है ना, तो वो फिर फसलें वगैरह, जैसे हम चंदा कहते हैं, एक दिन मुकर्रर किया जाता है आज भी गाँव में, तो वो जो हदिया लोग देना चाहते हैं, तो दह यकी देना चाहते हैं, तो वो उस वक्त हैकल में लाया करते थे, इसलिए उसे ईद खमसीन कहा गया है। तो ये यहूदियों में बहुत बड़ी ईद मनाई जाती थी। तो वो हर एक अपने अपने हदिये लेकर आए हुए हैं, तो वहाँ यरूशलेम में आए ईद मनाने के लिए। दूसरा लफ्ज़ पड़ा है पेंतीकोस्त का दिन, इसका मतलब है 50वां दिन। यीशु मसीह कितने दिनों का मुर्दों से जी उठा था? कितने दिनों के बाद? तो कितने दिनों के बाद आसमान पर यीशु मसीह उठाया गया जी उठने के बाद? शाबाश, ऊंची बोले। 40 दिन के बाद यीशु मसीह आसमान उठाया गया। तो रूह कुदस कितने दिन के बाद फिर नाज़िल हुआ रसूलों पर? 10 दिन के बाद। ये 40 और 10 जो है फिर 50 बनते हैं। पेंतीकोस्त का मतलब है 50वां दिन। पेंतीकोस्त का क्या मतलब है? 50वां दिन। तो रसूल कहाँ बैठे हुए थे? बाला खाना में। कहाँ बैठे हुए थे? बाला खाना में बैठे हुए थे। कितनों की जमात थी? 120। और शाबाश, बहुत अच्छा। कितने की जमात है? 120 लोगों की, जिन्हें 12 शागिर्द हैं, कुछ खवातीन भी हैं जो यीशु के साथ साथ रहती थी, कुछ मर्द भी हजरात हैं। 120 की जमात है। तो रूह कुदस उन पर बाला खाना में नाज़िल हुआ। कहाँ पर रूह कुदस नाज़िल हुआ? बाला खाना में। किस सूरत में? आग और तुंद हवा की सूरत में। आग और जब आग आसमान से आग नाज़िल होती है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा के पाक रूह ने उनकी जिंदगियों को बदल डाला। वो पहले जैसे रसूल नहीं रह गए, वो इनकार करने वाले भगौड़े किस्म के थे, यीशु को छोड़कर सब भाग गए, लेकिन रूह कुदस ने उनकी जिंदगियों को बदल डाला है। अब वो बड़े यकीन के साथ, ईमान के साथ वो जाकर पहले बालाखाना में बैठे हुए, फिर नीचे आगे हैं। तो यहूदी लोग जो है मुख्तलिफ शहरों से हैं, कप्पादोकिया से, पैम्फिलिया से, फ्रूगिया से, माबाइनुल नहरीन से। ये मैं पूछना चाहता हूँ, मैं माबाइनुल नहरीन किसको कहते हैं? माबाइनुल नहरीन आपने कभी दुआबा देखा है? ये मेसोपोटामिया जो बाबल का इलाका है ना, ये दो नहरों के दरमियान जो होता है, माबाइनुल नहरीन, दो नहरों के दरमियान जो इलाका होता है, बाबल जो था वो दो पानियों के दरमियान, दो दरियाओं के दरमियान ये जगह थी। वहाँ के रहने वाले पंफोलिया, लोबिया, मिस्र और भी तकरीबन बहुत से, ये 16 मुल्कों के लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो ईद मनाने के लिए आए हुए, ईद खमसीन मनाने के लिए। तो वो वहाँ जब उन्होंने शोर सुनाने पर क्या हो रहा है, उन्होंने हैकल को छोड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं। कहाँ आगे हैं? गली में। वहाँ वो हैकल में नहीं है, बात कहते हैं कि हैकल में थे। वो बालाखाना से उतरकर नीचे आ गए हैं, गली में, बाजार में आ गए हैं। तो वहाँ रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ है। ये 16 मुल्कों के लोग आए हुए हैं। जब रसूल बोल रहे हैं तो वो अपनी जुबान बोल रहे हैं। रसूलों की कौन सी जुबान है? रसूलों की अरामी जुबान है। यीशु मसीह भी अरामी जुबान बोलता था, मुकद्दसा मरियम भी अरामी जुबान बोलती है। ये उनकी मादरी जुबान है। इसराइल के लोग भी यही बोलते थे। फिर बाद में इसके तर्जमे हुए हैं
عبرانی زبان میں، یونانی زبان میں، تو پینتیکوس جو ہے وہ یونانی زبان کا لفظ ہے. وہ سب اپنی اپنی ہر ایک اپنی اپنی زبان میں بول رہے ہیں. تو جو رسول ہیں جو وہ اپنی زبان بول رہے ہیں. تو معجزہ اس بات میں ہے کہ لوگوں کو ہر ایک کو، اگر کوئی عربی ہے تو عربی میں اس کو سمجھ آ رہی ہے، اگر میسوپوٹامیہ کا ہے تو اس کو اپنی زبان میں، اگر کوئی فارسی ہے ایران کا یا بابل کا رہنے والا تو ان کو فارسی میں سمجھ آ رہی ہے. ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سن رہا ہے. یہ ہے معجزہ. تو آج کل جو زبان بولتے ہیں ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، نہ ان سے بڑی دفعہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو زبان بولی اس کی سمجھ بھی کو آئی ہے، نہ ان کو اپنی سمجھ ہوتی ہے نہ دوسروں کو سمجھ آتی ہے. ایک دن ہمارے گھر میں ایک بہن آئی، وہ غیر زبان میں دعا کر رہی تھی. مجھے ابھی وہ لفظ یاد نہیں جو وہ بول رہی تھی، مجھے یاد تھے، لیکن میں نے اس کا ترجمہ اس کو بتایا کہ جو بول رہی تھی، میں اس کا ترجمہ اس کو بتایا کہ خداوند کی جو صداقت ہے وہ بے حساب ہے. خداوند کی صداقت کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اور میرے مسیح تو نبوت ملی ہے، میں حکیموں سے نہیں پڑھا نبوت ملی ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ خدا کا پاک جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے اس کا مطلب سمجھاتا ہے. تو یہ ہے، رسولوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، تو دوسرے لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی بولی میں خدا کا کلام سن رہے ہیں. آج بالکل اس کے الٹ ہو گیا ہے. تو سب جو زور ہے وہ بپتسمے بھی دیتے ہیں. تو بپتسمے کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن پینتیکوس کے دن ان سب کی زندگیوں کو جو انکار کرنے والا تھا یسوع مسیح کا، جو بھگوڑا پن پایا جاتا تھا، وہ سب وہ بھی زندگی ان کی بدل گئی ہے روح القدس کے وسیلے سے. آپ دلیری کے ساتھ وہ سارے خدا کا کلام سنا رہے ہیں. تو جب وہ خدا کا کلام سنا رہے ہیں تو وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تازہ میں کے نشے میں ہیں. تو پترس اس کے جواب میں کھڑا ہوتا، وہ کہتا کہ اے اسرائیلی مردو، یہ نشے میں نہیں، ابھی تو تیسری گھڑی ہے، 9 بجے کا ٹائم ہے، یہ کس طرح نشے میں ہو سکتے ہیں؟ روزہ افطاری کا بھی وقت نہیں ہے یہ. تو وہ کہتا ہے کہ آج وہ بات پوری ہوئی ہے جو یوئیل نبی کی بات کہی گئی تھی کہ آخری دنوں میں کیا ہوگا، تمہارے بیٹے بیٹیاں کیا کریں گے؟ نبوت کریں گے، اور جوان رؤیا دیکھیں گے، بوڑھوں کو خواب آئیں گے، جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہی نجات پائے گا. یہ پترس کہ جب یہ الفاظ کہے تو لوگ جو ہیں خدا نے ان کے دل کو چھیدا. تو پترس رسول کہتا ہے کہ اے میرے بھائیو سنو، تم نے یسوع ناصری کو مصلوب کر ڈالا، تم اس کے قاتل بن بیٹھے ہو. ان کے دل لکھا پسیج گئے. وہ پترس سے کہتے ہیں ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں. پترس کہتا ہے بس تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں سے توبہ کرے. کیا کرے؟ توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرے، اور یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے. یسوع مسیح کے پہلا ہے کیا بات پترس نے کہی تھی، بس تم ہمیں سے ہر ایک اپنے گناہوں کے لیے کیا کرے؟ بپتسمہ، ایمان لائے یسوع مسیح پر. دوسرا ہے کہ بپتسمہ پائے. تو پھر پترس کہتا ہے کہ یہ وعدہ تم سے، کہتا ہے بچوں کو بپتسمہ نہیں دینا چاہیے. سنیں غور سے، یہ وعدہ تم سے، تمہارے بچوں کے بچوں سے ہے، بلکہ دور سے آنے والی نسلوں کے لیے ہے. کن سے وعدہ ہے یہ؟ تمہارے، اور بولو سارے، تمہارے بچوں سے ہے. کہنے کا بچے نہ دو یہ بپتسمہ. یہاں پینتیکوس کے دن پہلے دن ہی پترس رسول کہتا ہے کہ یہ وعدہ کن سے ہے؟ بچوں سے. کن سے ہے وعدہ؟ بچوں سے، اور تمہارے بچوں کے بچوں سے دور سے آنے والی نسلوں کے لیے ہے، جو بال نہیں گئے ان کے لیے ہے بپتسمہ. تو اس لیے کیتھولک چرچ میں یہ بچوں کو دیا جاتا ہے. آج کل تو کچھ فرق پڑ گیا ہے. نہیں تو جب ہم داشت کو کوڑا میں تھے تو وہاں
बच्चा जब पैदा होता है ना, माँ का दूध भी पिलाया जाता है, पहले चर्च में लेकर जाते थे बपतिस्मे के लिए। इस तरह एक नई कलीसिया भी बच्चों को इजाजत नहीं थी कि अपने बच्चों को दूध भी पिलाएं, पहले जाकर बपतिस्मा कराते थे। लेकिन आज हमने पेंतीकोस्त के बारे में बातचीत करनी है, तो रूह कुदस के बारे में। रूह कुदस है आज भी मेरी हमारी जिंदगियों को बदल देता है। पुराने नामे में भी इसका बहुत जिक्र है पाक रूह का, नए नामे में भी। पुराने नामे में हजरत मूसा था, उस पर खुदा उनका पाक रूह था, तो उसका जो ससुर है उसका क्या नाम था बिला जो जी मूसा के बाप का नाम, ससुर का नाम, हाँ यत्रो, शाबाश यत्रो था। वो उसके पास है, उसने उसे सलाह दी कि तू अकेला इनके फैसले करता है, तो अपने मुआवन चुन। तो हजरत मूसा ने 70 मुआवन चुने, 70 लोगों मुंतखब किया जो कौम में बुजुर्ग थे। फिर खुदा ने लिखा है कि रूह जो है वो ट्रांसफर होती है, एक से दूसरे में दाखिल हो जाती है। रूह क्या होती है? ट्रांसफर होती है, यानी एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाती है। हजरत मूसा पर खुदा का रूह था, उसने अपने हाथ उठाकर उन 70 बुजुर्गों की दुआ की, तो वो भी नबूवत करने लगे। खुदा का पाक रूह मूसा से और 70 बुजुर्गों के मुंतकिल हो गया। इसी तरह एक और वाक़या बड़ा मशहूर पुराने ज़माने में, इलियास नबी का। इलियास नबी जब उसका शागिर्द है अलीशा जब उठाया जाने वाला था, तो उसे कहता है कि मुझसे मांग, मैं तुझे क्या दूं। उसने दुनिया की कोई चीज नहीं मांगी, ना दौलत मांगी है, ना कोई और चीज मांगी है कि जिन्हें सूट चाहिए, बल्कि उसने कहा है, अलीशा नबी ने कहा कि तेरी रूह में से मेरे लिए क्या मिले? दुगना हिस्सा मिल जाए। कितना हिस्सा मिले? दुगना हिस्सा मिले। तो उसको ऐसा ही हुआ। और इलियास नबी ने कहा था, अगर तू मुझे आसमान पर जाते देख ले तो रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा। ऐसा ही हुआ था। उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो कहता है, इलियास नबी कहता है कि मैंने फलां जगह भी जाना, फलां जगह भी जाना, लेकिन उसके साथ साथ चलता है। तो जब आसमान पर उठाया गया इलियास नबी, उसकी चादर गिर गई थी, वो उसने पकड़ ली है। चादर से गिरने से ये मुराद है कि खुदा का रूह उस पर भी नाज़िल हो गया। इस तरह नए नामे में भी हज़रत सदीक़ा मरियम पर रूह कुदस नाज़िल था। किस पर? मुक़द्दसा मरियम पर रूह कुदस नाज़िल था। जब वो अपनी खाला के पास जाती है, अलीशबा के पास, ज़करिया के घर में, जब वो दोनों की मुलाकात होती है, पहले अलीशबा पर रूह कुदस नाज़िल नहीं है। जब ही अलीशबा की और मुक़द्दसा मरियम की मुलाकात होती है, तो लिखा है कि बच्चा खुशी के मारे उसके पेट में उछल पड़ा। तो वो गीत गाती है, मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर आई है। तो रूह कुदस से वो भर जाती है अलीशबा। मुक़द्दसा मरियम की मुलाकात से वो रूह कुदस से भर गई और वो गीत गाने लगी। मुबारक है वो जो औरतों में से मुबारक है, तेरे पेट का फल भी मुबारक है। वो खुशी से गीत गाती है। इस तरह से जो लोग रूह में रहते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, वो दूसरों से जब मुलाकात करते हैं तो वो भी रूह कुदस से मामूर हो जाते हैं। इसी तरह रसूलों के बाद मोमिनीन में गैर कौमों पर भी रूह कुदस नाज़िल हुआ है। अगर हम पेंतीकोस्त को देखें तो उस वक्त 3,000 लोगों ने ईमान लाया और बपतिस्मा पाया। रसूलों के चौथे बाब में पढ़ते हैं कि जब वो लोग ईमान लाते हैं तो दूसरे दिन भी लोग ईमान लाए, तो लोगों की तादाद 5,000 हो गई। दिन दिन बढ़ती जा रही है। इसी तरह अगर हम रसूलों के 5वें बाब में पढ़ें, हननिया और सफीरा का बड़ा जिक्र है। जब वो लोग रसूलों के पांव पर रखते थे, अपने जाकर जमीनें बेच पर उनके पास लाते थे, तो उन्होंने भी जमीन बेची, आधी कीमत घर में रख ली, आधी जाकर पतरस रसूल के पांव पर रख दी। तो पतरस चूंकि रूह कुदस से मामूर था, उसने उससे पूछा, है हननिया, क्या जमीन इतने को बिकी है?
تو وہ اس نے جھوٹ بولا، کہنے لگا کہ ہاں اتنے کو بکی ہے، آدھی قیمت اس نے گھر میں رکھ لی، آدھی رسولوں کو دے دی، اس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اس کی بیوی سفیرہ آتی ہے، پترس اس سے بھی پوچھتا ہے کہ سفیرہ اتنے کو زمین بکی؟ وہ بھی کہنے لگے کہ ہاں اتنے ہی کو زمین بکی ہے۔ تو پترس کہنے لگا کہ دیکھ تیرے شوہر کو دفنانے کے لیے لے گئے ہیں، تجھے بھی ابھی لے جائے۔ وہ لوگ جو مکر و فریب سے بھرے ہوتے ہیں، دوسروں کو فریب دینا جانتے ہیں، لیکن خدا کو یا پاک روح کو فریب کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ ہمارے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اس طرح غیر قوموں میں روح القدس پایا ہے، جیسے کورنیلیس نے، وہ بڑا دعا کو ہے، دعا کرنے والا ہے، حالانکہ غیر قوم سے ہے، رومی صوبے دار ہے، غیر قوم کا ہے، لیکن جو کچھ انسان کرتا ہے اس کی یاد جو ہے وہ خدا کے حضور ہوتی ہے۔ خداوند کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے کہ تو پترس کو بلوا، اس سے کلام سن، کیونکہ تیری دعائیں اور خیرات خدا کے حضور پہنچی ہیں۔ وہ یہ کام کا دعا بھی بہت کرتا تھا اور خیرات کیا تھا لوگوں کو۔ وہ کہتا ہے کہ تیری دعائیں اور خیرات جو کرتا ہے وہ خدا کے حضور پہنچی ہیں، بس وہ پترس کو بلوا اور اس سے خدا کا کلام سن۔ اس نے اپنے 3 سپاہی بھیجے اس کو بلانے کے لیے، تو 2 دن کا سفر ہے، 2 دن سفر کر کے جاتے ہیں، پھر پترس کو جا کر ملتے ہیں۔ اس پر بھی خداوند کا روح نازل ہوتا ہے، اسے بتایا گیا کہ 3 آدمی تیرے پاس آ رہے ہیں، ان کے پاس بے کھٹکے بغیر کسی بہانہ کیے تو ان کے ساتھ چلا جا۔ پھر ان کے پاس جاتا ہے، پہلے ان کی مہمان نوازی کرتا ہے، جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ پترس روانہ ہو جاتا ہے واپس کورنیلیس کے پاس آتا ہے۔ تو جب وہ کورنیلیس کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس نے کچھ اپنے مہمان، کچھ عزیز و اقارب اس نے بلائے ہوئے تھے، اکٹھے کیے ہوئے تھے، تو وہ اس کے پاؤں میں گرتا ہے، پترس اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ تو پھر پترس کہا تو نے مجھے کس بات کے لیے بتایا ہے؟ تو وہ ان کے سامنے خدا کا کلام سناتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ گھر میں جتنے بھی اس کے غیر قوموں کے افراد بلائے ہوئے ہیں ان سب پر روح القدس نازل ہوتا ہے۔ اس نے 12 افراد اکٹھے کیے ہوئے تھے، اس کے رشتے دار تھے، ان سب پر جو غیر قوم پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہے، کیونکہ روح القدس سب قوموں کے لیے ہے۔ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں، کسی بھی قوم سے ہو خدا سے ڈرتا ہو اور راست بازی کے کام کرتا ہو، وہ خدا کو پسند ہے۔ ایک اور رسولوں کے مال میں ذکر ہے، یسوع کا وہ بھی شاگرد ہے فیلبوس، اور غیر قوم ایک ملکہ آتی ہے، ملکہ کنداکے کی، پھر اس کا ایک خواجہ سرا آتا ہے۔ خواجہ سرا کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ خسرے کو، پترس کو۔ وہ خسرا ہے، وہ بھی غیر قوم میں سے ہے، وہ بھی خدا کا کلام سننے کے لیے آتا ہے۔ وہ خدا کا کلام سن کر واپس جا رہا ہے، واپس وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہے اور شاہ نبی کا سجدہ پڑھ رہا ہے۔ کس کا پڑھ رہا ہے؟ جو خدا کی نجات ہے وہ سب کے لیے ہے۔ ہم خسروں کے جو مخنث ہیں ان کو دھتکارتے ہیں، لیکن وہ بھی خدا کے چنے ہوئے ہیں۔ تو خدا کے پاک روح نے اس کو اٹھایا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، خدا پاک روح مداخلت کر رہے انسان کی نجات کے لیے۔ پاک روح نے فیلبوس شاگرد کو اٹھایا اور اس کے رتھ کے نزدیک جا کر اتار دیا۔ پھر وہ پوچھتا ہے خواجہ سرا سے، جو کچھ تو پڑھ رہا ہے وہ سمجھتا بھی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھ سکتا جب تک کوئی میرا ہادی نہ ہو، مجھے ہدایت کرنے والا نہ ہو، اس وقت میں نہیں سمجھ سکتا۔ پھر اس نے اس کو سمجھایا فیلبوس نے، تو آگے پھر پانی آتا ہے، وہاں اس کو بپتسمہ دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اب مجھے بپتسمہ دینے سے کون سی چیز روکے ہوئے ہے؟ تو وہ کہتا ہے فیلبوس بس تم ایمان لاؤ اور بپتسمہ پالو۔ ایمان لانے سے اس نے ایمان لایا اور پانی میں اترے، وہاں بپتسمہ لیا۔
दूसरा है जो तो हम बुरा मानते हैं, तस्लीम करते हैं, वो फिर अपने मुल्क में जाता है, वहाँ जाकर वो बिशप बनता है जिसने उसे सारे इलाके को मसीही कर दिया है। तो खुदा ने खुसरो को भी इस्तेमाल किया अपने जलाल के लिए, मुखर्रस को भी। तो बड़े लोग उसके वसीले से मसीह के पास आए हैं। खुदा अपने जलाल के लिए गैर कौमों को भी इस्तेमाल करता है। फिर पौलुस रसूल, अगर हम रसूलों के माल पढ़े 16 बाब वहाँ लिखा है, पौलुस और सीलास मुनादी के लिए पैम्फूलिया में गए हुए हैं, तो वहाँ एक लौंडी मिलती है। लौंडी किसको कहते हैं? गुलाम होते हैं जो पैसों से खरीदे जाते हैं। ऐसे गुलाम होते हैं, लौंडी आते हैं, खरीदे जाते। तो बड़े लोग जो थे वो खरीदते थे इनसे काम लेने के लिए। तो वो जो लौंडी रास्ते में मिलती है, कुनीज मिलती है उसे, वो लोगों को कह रही है, उसमें दया बताने की रूह है। वो कह रही है, रसूलों की बशारत दे रही है कि ये खुदा ताला के बंदे हैं। ये किसके बंदे हैं? खुदा ताला के बंदे हैं। ये तुम्हें निजात की राह बताते हैं। किसकी राह बताते हैं? किसी ने थोड़ी मैं पैगाम दूंगा, खुदा ने जिंदा रखा तो निजात की राह। और भी बहुत सी राहें जो हमने मुंतखब की हुई हैं, अपनी नजर पे चल रहे हैं। तो ये बदरू कह रही है जो उस औरत में है और रसूलों के बारे में कि ये खुदा ताला के बंदे हैं, ये तुम्हें निजात की राह बताते हैं। किसकी राह बताते हैं? निजात की राह बताते हैं। तो जब उनके मालिकों ने देखा कि बदरू इस नौकरानी से निकल गई है, उन्होंने हुकूमत के साथ जोड़ तोड़ किया, उनको अंदर कैद खाने में डाल दिया। लेकिन देखें, खुदा के बंदे जब जेल में जाते हैं, जेल को भी हिला के रख दिया है। आधी रात का वक्त है, उनके हाथों पाँव में कील ठोके हुए काट में उनको रखा गया है। काट में ठोके गए उनके पैर भी, कितनी दर्द होती होगी उनको। आधी रात का वक्त हुआ, दुआ कर रहे हैं, तो एक बड़ा ज़ल्ज़ला आता है। क्या आता है? खुदा ने जेल की छत को नहीं गिरने दिया, बल्कि बुनियादों को हिला के रख दिया है। जब बुनियादों हिल गई हैं, जो जितने मुजरिम हैं अंदर, सबकी हथकड़ियां और बेड़ियां टूट जाती हैं। जो बड़े बड़े फाटे का जेल के वो ताले टूट जाते हैं, सब कैदी आजाद हो गए। तो पौलुस वहां खुदा का कलाम सुना रहा है लोगों को। तो फिलिप्पस दरोगा है, खुदा ने उसको दिल को खोला। वो कहता है कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। पौलुस उसे कहता है कि बस तू ईमान ला और तू और तेरा घराना निजात पाएगा। क्या कहता है पौलुस उससे? बस तू ईमान ला। सब बोले बस तू और तेरा घराना निजात पाएगा। बस तू ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। पहले वो बुतों की पूजा पाठ करने वाला है, वो यीशु मसीह का पता ही नहीं है, बुतों की पूजा पाठ करने वाला है। जब पौलुस ने खुदा का कलाम सुनाया तो सिर्फ उसको नहीं बल्कि और भी लोगों को तब्दील कर दिया है। वो ईमान लाता है। फिर पौलुस को और सीलास को वो अपने घर ले जाकर उनके लिए ज़ियाफत तैयार करता है। जब वो खाना खा लेते हैं तो उसके बाद उनको बपतिस्मा देता है, पूरे घराने को। तो रसूलों के माल में जितने भी बपतिस्मे हुए हैं लोगों के घरों में हुए हैं, इस घराने को भी उनके घर में बपतिस्मा दिया गया है, वो ईमान लाए हैं। तो इसी तरह मेरे जो 35 के दिन रसूलों को, गैर कौमों को जिन्होंने खुदा का कलाम सुना है, सब ने ईमान लाया है। यीशु मसीह पर ईमान लाया है। और ईमान लिखा है रसूलों के माल में, ईमान लाने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जाती है। आज भी मेरे बहुत से लोग हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो ईमान में बढ़ते जाते हैं। तो आप भी, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ अपनी बेटियों से, बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से कि हर रोज खुदा का कलाम पढ़ें। एक बार पढ़ें, 2 पढ़ें, जितने भी पढ़ सकते हैं पढ़ें, तो खुदा आपके घराने के लिए बरकत का सबब बन जाएगा। आपको बरकत मिलेगी।
खुदा के कलाम के पढ़ने से दुआ करने से आप घर में दुआ करेंगे, घर में बरकत आ जाएगी। तो आज भी मैंने देखा है बड़े खानदानों को जो बाइबल सुबह उठकर पढ़ते हैं, दुआएं करके अपने घरों में खुदा उनको बरकत देता है, उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। हमें खुदा से मांगने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि उसको हमारे मांगने से पहले ही जानता है। तो आइए अभी हम यीशु पर ईमान लाएं। पाक रूह जो उसका भेजा हुआ है, तीसरा शख्स है। खुदा में कितने शख्स हैं? कौन कौन से? और शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बच्चे सियाने हो गए। ये 3 शख्स हैं। तो 35 के दिन रूह खुदा जो तीसरा कानून है वो उतरा है लोगों में। तो पुराने नामे में ये था कि जब रूह खुदा आता था लोगों के पास, फिर वापस चला जाता है। तो 35 के दिन जब रूह खुदा रसूलों पर नाज़िल हुआ है, फिर रूह पाक वापस नहीं गया। अभी वो कलीसियों में मोमिन के दरमियान चलता फिरता है, नजर आता उनकी जिंदगी में मोमिन की। बशर्ते के ईमानदार जो लोग हैं वो दुआ करने वाले बन जाएं। हमें इसकी अशद ज़रूरत है। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से आमीन। अभी मेरे बारे में सब खड़े हो जाएं तो दुआ करेंगे। और नारा बन के सब आंखें बंद करेंगे। आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए शादमान दिल अता कर। आज के कलाम मुक़द्दस के ऊपर मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं जो तूने हमारे सामने रखा। तेरा कलाम जिंदा और मौसर है, जो 2 धारी तलवार से भी तेज तर है, जो रग रग बंद रूह और कूदे में से होकर गुजर जाता है। हाजिर हाजिर जमात के लिए मेहनत करता हूँ कि अपने पाक रूह को कसरत से हम पर नज़र कर। हमारी ज़बान होठों को छू में पाक और पवित्र कर रहा है खुदा। उनके पाक रूह का मसर तेरी कुदरत तेरा जोर हो इन बेटों बेटियों पर बुजुर्गों पर ठहर जाए खुदा। जो बीमार है खुदा अपने पाक रूह से कोई छू है खुदा, ताकि कोई यहाँ बीमार ना रहे बल्कि सब शिफा याफ्ता हो जाए खुदा। तेरी बरकत इन पर ठहर जाए। उन बुजुर्गों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों की दुआ करूँ सब शिफा पाए खुदा। तेरी बरकत इन पर ठहर दे। तू हमारे गुनाहों के लिए घायल किया गया, तूने हमारी बदकारियां अपनी पर उठा ली। हमने तुझे खुदा की तरफ से मारा, कूटा, सताया, मतरूक समझा, लेकर तू मर्द गमनाक है। हमारे गम तुझ पर ला दिए गए, तू हमारी बीमारियों का आशना हुआ। तेरे कुड़े खाने से हमने शिफा पाई। सुआ जलाली खुदावन इन घर घरानों को खुदावन बड़ी बरकत दे। तेरे पाक रूह का मसा, तेरी कुदरत, तेरा जोर ठहर दे। ऐ खुदावंद इस हैकल को खुदावंद अपने पाक रूह से भर, ताकि जो कोई है खुदावंद यहाँ दुआ करे तो उनकी सुनना है खुदावंद। तो आज भी दुआओं का जवाब देने वाला है। ऐ खुदावंद वायर के लिए दुआ कर दो कि खुदावंद अपने रूह से भर रहे खुदावंद, ताकि तेरे नाम को जला दे सके। इन बेटों बेटियों को जो यहाँ मौजूद है इनको भी बड़ी बरकत दे, इनके घरानों को बड़ी बरकत दे, ताकि इन बेटियों बेटों के वसीले से इनके घराने निजात पाएं। बुजुर्गों के लिए दुआ कर दो कि खुदावंद ने भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद तेरा रूह इनके दरमियान काम करे, तेरी बरकत इन पर ठहर जाए। प्रभु यीशु जी तेरी जय हो। ये सब कुछ हम मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। शुक्रिया मास्टर जी, बहुत ही खूबसूरत कलाम। ये हमारी ईद पेंतीकोस्त की तैयारी के अयाम हैं। उसी सिलसिला में आज का पैगाम हमने सुना और आइंदा हफ्ते भी हम देखेंगे। इसी से रिलेटेड रूह कुदस के फलों के मतलब या उससे रिलेटेड हम खुदा के कलाम से सुनेंगे। अब वक्त है कि हम अपने हदिये और नजराने खुदा के हजूर में पेश करें और दुआ के साथ मिलकर हदिये का गीत गाएंगे और मिल के दुआ करेंगे।
اس کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی عرض منتیں اور گواہیاں جو ہماری زندگی میں خدا نے کام کرتا ہے، جو کسی کی زندگی میں کام کیا ہے، اس کے لیے میں دعوت دوں گا طارق جاوید گل کو کہ وہ آئیں ہماری رہنمائی کریں۔ اگر کسی کی زندگی میں خداوند نے کام کیا ہے، کوئی اپنے گواہی دینا چاہتا ہے تو وہ اس وقت سامنے آئے اور گواہی دے سکتا ہے۔ میری طرف سے سب کو سلام۔ اور 1 مہینہ ہو گیا میرے کولسٹرول بھی بڑھا ہوا تھا، میری ٹانگوں میں بھی بہت درد تھی، میں جب چرچ آتی تھی بہت مشکل ہوتی تھی آنے میں، اور خدا کا شکر ہے کہ آپ کافی ٹھیک ہے، اور تھوڑا بہت جو تکلیف ہے میرا گمان ہے کہ بالکل آرام آ جائے گا۔ آئے ہم خدا کے حضور بیماروں کے لیے دعا کریں گے۔ خدا پیارا خداوند، ان تمام ناموں کو جو ہم پڑھیں گے، نبی پرویز، سمیرہ ملک، نبی گل، اینیس، فرزانہ عمران، مریم، عرفان، ناصرہ بابر، مینوئل برکت، رام سامر، شہباز، سنا، سمیرہ مائیکل، سمیر مائیکل، بابر سلامت، وائلٹ، سلومی یونس، یونس جیمز، سمیرہ شہزاد، ان سب کے لیے ہم خدا سے التجا کرتے ہیں کہ خداوند انہیں صحت اور تندرستی عطا کرے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم ساجد راجہ اور عذرا ساجد کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے جو اسلام آباد میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ پیارا خداوند انہیں کرونا جیسی بیماری سے رہائی بخشے، انہیں شفا بخشے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم رشتوں کے لیے خداوند سے دعا کریں گے۔ رائلہ اشرف کے لیے، شبانہ ایمینویل، تیتس ایمینویل، شازیہ ڈیوڈ، بشرا جیمز، پاسٹر صادق اینڈ فیملی، ایلما جان، عمر اینڈ سمر، ان سب کے لیے ہم دعا کریں کہ خداوند رشتوں میں تمام بندشوں کو توڑ ڈالے۔ اور پیارا خداوند ان فیملیز کے لیے، ان بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے اچھے رشتے فراہم کرے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم عمران مسیح کے لیے دعا کریں جنہیں خداوند نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ خداوند ان کی روح کو ابدی آرام بخشے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی دعا کریں۔ کومل جمشید، ساجدہ مٹو، عظما کامران، سمیرہ رونی، آسر اینڈ نعیم، تھامس اینڈ مسز تھامس، کیرن اور اظہر جو کہ لاہور سے ہیں، لوریٹا ڈسمنڈ، سمر ہیری، ان سب کے لیے ہم خداوند کے حضور منت کرتے ہیں کہ خداوند ان بے اولاد جوڑوں کو اولاد جیسی نعمت عطا کرے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم شکر گزاری کے لیے صفیہ بوٹا، مشتاق عنایت صبا، مشتاق طارق جاوید گل کے لیے التجا کرتے ہیں کہ خداوند ہماری شکر گزاری کو قبول کرے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ابھی ہم اپنے اس پریئر سیشن کے آخری سیشن کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں دعوت دوں گا ناصر مشتاق کو کہ وہ آئیں اور لاسٹ سیشن میں ہماری رہنمائی کریں۔
आइए मेरे अजीज़ सब अपने कदमों पे खड़े होते हैं और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हैं। हम सब ने कलाम के जरिए खुदा की रूह को महसूस किया। आज का कलाम रूहुल कुदुस के नज़ूल का कलाम, यकीनन रूहुल कुदुस ने हम सब को छुआ है, और अगर जिन्हें रूहुल कुदुस ने नहीं छुआ वो ईमान रखें। अब इस हिस्से में जरूर खुदा का रूह उन्हें छुएगा। तो मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और हम गीत गाते हैं रूह की बारिश। रूह
شفا چاہیے تو اس کے گلے لگ جائے، اس کی باہوں میں آ جائے، اس کی صلیب کے نیچے آ جائے، اس کے لہو سے اپنے آپ کو دھو لے۔ Jesus. یسوع مسیح جب رومی حکومت نے خداوند یسوع المسیح کو مصلوب کر دیا تو خداوند کے شاگرد جو کہ پریشان، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، خوف زدہ اور اپنے آپ کو بند کیے ہوئے، اتنا ڈر، اتنا خوف، کہ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ہمارے استاد کو، خداوند یسوع المسیح کو رومی حکومت نے مصلوب کر دیا، شاید ان شاگردوں کو بھی وہ قتل کر دے۔ اتنا خوف ان کے اندر بھرا ہوا تھا کہ خداوند کو بار بار انہیں سلامتی دینے کے لیے آنا پڑا۔ میرے عزیزو، آج اس بالا خانہ میں جب روح القدس کا نزول ہوا، جب روح القدس آگ کی صورت میں، ہوا کی صورت میں ہر ایک پر آ کے ٹھہرا، تو انہیں جرأت ملی، انہیں طاقت ملی، جو کہ بزدل تھے وہ طاقتور بن گئے، جو کہ خوف کی حالت میں تھے ان کا سارا خوف جاتا رہا، ان کے دکھ خوشیوں میں تبدیل ہو گئے اور وہ باہر نکلے۔ اور یوحنا اور پترس جب باہر نکلے تو انہیں ہیکل کے دروازے پر ایک شخص جو کہ پتاشی طور پر معذور تھا انہیں دکھا، اور اس شخص نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ دے۔ تو پترس نے اس پر نظر کی اور وہ سمجھا کہ شاید یہ دونوں پترس اور یوحنا مجھے کچھ دیں گے۔ میرے عزیزو، پترس کے الفاظ، پترس سے اس نے کہا کہ نہ تو میرے پاس سونا ہے اور نہ چاندی، میں یسوع ناصری کے نام سے تجھے شفا دیتا ہوں، اٹھ کر چل پھر۔ میرے عزیزو، آج ہمارے درمیان روح القدس موجود ہے، ہمارے اندر روح القدس ہے، ساری طاقت ہمیں روح القدس سے ملی ہے، کیونکہ وہ ہمارا مددگار ہے، وہ خدا باپ اور بیٹے
किसी को बे औलाद ना छोड़ूंगा। मैं तमाम रुए ज़मीन इंसानों को औलाद का वारिस बनाऊंगा। आज के दिन उन बेटियों के लिए भी तुझसे मिन्नत की दरख्वास्त करते हैं जिनके रिश्ते नहीं सामने आते। ऐ बाप आसमानी, तुम जोड़ों को सामने ला, क्योंकि मेरे बाप ने नर और नारी पैदा किए हुए हैं। अब बाप आसमानी, तुम बेटियों के लिए अच्छे साथियों का इंतखाब करना, ताकि माँ बाप जो परेशान हाल है वो प्यारे खुदावन सुबह जब बेदार हो जाए तेरे नाम की गवाही के लिए तैयार हो जाए। खास तौर पर उन खानदानों के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं जिन खानदानों में नाचाकियाँ, बदसलूकियाँ, बदइत्तफाकियाँ यीशु जी प्यारे खुदावन घरानों को छू यीशु नाम से उनके तमाम शैतानी कुव्वत की तासीरों को यीशु नाम से खत्म हो जा, ताकि उनके घरानों में तेरा जलाल ज़ाहिर हो और ये घराने प्यारे खुदा आपस में प्यार मोहब्बत और सलूक से रहे और यीशु जी की जिंदगियों में बढ़ता चला जाए। आज के दिन जितनी जाने आमाल छूट भी है, मैं नहीं जानती बल्कि तू जानता है कि इनकी क्या क्या ज़रूरियात है। ऐ बाप आसमानी, उनकी ज़रूरियात को अपने इलाही खजाने से पूरा करना, ताकि आज के दिन ये तेरे दर से कोई जान खाली हाथ ना लौटे, बल्कि झोलियां बन बन कर तेरी बारगाह से निकले। और खास तौर पर उन बेटों के लिए तुझसे बरकत की दुआ चाहते हैं जो प्यारे खुदा नशे की लानत में फंसे और धंसे हुए हैं। ऐ बाप आसमानी, दुआ पर तुम पर अपने पाक की आग भड़का दे, ताकि इनके बदनों से ये शैतानी कुव्वत छाती रहे, ताकि ये माँ बाप जो परेशान हाल है ये परेशानियों से आजाद होकर और ये बेटे इन प्यारे खुदा नशे की लानत से आजाद हो जाए। क्योंकि मेरे बाप ने फरमाया है, कोई नशाबाज मेरी बादशाही में दाखिल ना होगा। प्यारे खुदा कुल कायनात के लिए तुझसे मिन्नत की दरख्वास्त करती हूँ, ऐ रहम के खुदा तुझ पर रहम का, ऐ बाप आसमानी तुझ पर तरस का, ऐ बाप आसमानी ने शैतानी जुमलों से आजाद कर, ताकि ये लोग इन शैतानी बिंदों से आजाद होकर तेरे नाम की गवाही के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि तुरंत जीसस खुदा खुदा तू रहीम और कदूस आसमानी बाप, खुदा खुदा जब हम उससे दुआएं तजाएं मांगते हैं, यकीन है खुदा खुदा उन्हें सुनता और कबूल करता है। खुदा खुदा खास आज तुझसे दुआ इल्तिजा करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो कोरोना जैसी वबा में मुब्तला हैं, जो कोविड के पेशेंट हैं और मुश्किलात में खुदावन अपने लहू को उंडेल खुदा अपने लहू से तमाम उन लोगों को आप और साफ रखना, ताकि वबा जाती है और हम सब जो है खुदा खुदा यहाँ मौजूद हैं और हमारे खानदानों के साथ भी और खुदा उन्हें भी इस वबा और इस मोहल्ले की बीमारी से बचा कर मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम दुआए रब्बानी और फरिश्ते का सलाम पढ़ें, मैं चाहूँगा अपने तमाम मेंबर से कि वो सामने आएं और हम ख़ास तौर पर कोविड के लिए उन तमाम मरीज़ों के लिए जो कोविड में मुब्तला हैं एक गीत गा कर खुदा उनसे दुआ करेंगे कि खुदा इस पूरी दुनिया को
हमारे मुल्क को, हमारे शहर को इस वबा और इस बीमारी से निजात दे और हमारी बख्शिश करे। मैं वसीम भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो सामने आए। सब मिलकर खुदावंद से रहम की अपील करेंगे। खुदा हमारी ज़मीन पर, इस रोए ज़मीन पर रहम। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, बख्शिश सभी का सभी हमारे परमेश्वर को दुआ करें जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है हमारे बाप जो आसमान में है तेरा नाम तेरी बात सही है तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है
जमीन पर हो हमारे रोज की रोटियां हमें दे और इस सवाल देकर द्वारा बख्श दे तू हमारे कष्ट बख्श और इस भाई की ना पड़ेगी परंतु भाई से चला हमें Lord Everett, good person, Lord Grace Harvey, Lord Invited, Invited, God, Yesu, and bless our Maryam, God, Lord, and the word who was the water, and the right more, the word, God, बाप और बेटे और कुदस का हो। आप हमारे को यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह, इशराक, इत्मीनान, तसल्ली हम सबों के साथ रहे। आमीन।